Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It has been so long. I know this has been so long. So previous video was how to use different brushes and what are the brushes I use in my YouTube and my day-to-day makeup routines. And this video you can see it's bare face. So today I'm going to show you how to apply foundation snatched way. So today you can see I'm with the bare skin with some skincare. So today I thought to do a face foundation video, like how to apply foundation and how to get the neat and snatched base and contouring and highlight. Today we are going to start that. So before that, so I have prepped my skin. So the main thing in the foundation application, how the foundation will be snatched and smooth, it will be based on the skincare of how you are doing based upon your skin type. So you know, to know that, if you want to know which skin type and how to do the skincare, so don't forget, let me in the comment section below. I'll definitely do a skincare video which you are supposed to do, follow the skincare, and which you can also do it, and I can recommend some products as well. आज जितना भी यूज़ कर रहा हूँ, most of the items we can get it in India. तो जब हम जो products हमको इंडिया में मिलता है easily, वो products दिखाने के लिए कोशिश करूँगा. ज़्यादा से ज़्यादा सब इंडिया में ही मिलने वाले products है. तो without any ado, let's get started. So guys, starting with the foundation, for the foundation application, the first स्टेप इज़ द स्किन केयर एंड स्किन प्रेप. जब भी हमारा स्किन प्रेप नहीं होता है तब हमारा फाउंडेशन ढंग से बैठता नहीं है. सो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ द फाउंडेशन, हैविंग द नीट स्मूथ एंड फिनिश्ड फाउंडेशन. Most of the time I'm preparing two videos now. So one is the foundation, the next one I'm thinking to do is the benefit mascara जो हमको recently launch हुआ है, which is a magnetic mascara. So let me show you the mascara as well. So this is the real magnet mascara. तो ये mascara का review भी upload करूँगा next video में. मिस इट, so मैं एक दो दिन में मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर लूँगा मेरा यूट्यूब चैनल में. सो डोंट मिस इट. सो लेट मी फिनिश माई आईब्रोज ऑफ द कैमरा एंड लेट मी कम बैक. I'm back with my eyebrows. So I have done my eyebrows. So this, the area, the concealer which is able to see can be covered in the foundation. So don't worry. If you want to know how I do my eyebrows, you know what you have to do, just let me in the comment section below. So I'll upload the video how to do eyebrows, I can share my tips and tricks and how I generally do my eyebrows. Before base, you know what we have to apply is a primer. No priming is a crime. So तो प्राइमर के लिए मेरे पास दो है. एक हमारा मैक का स्ट्रोबिंग क्रीम है. सो यू कैन यूज़ दिस एज योर प्राइमर ऑल्सो, और यूज़ योर मॉइस्चराइजर एज. दूसरी चीज़, जिन को पोर्स है एंड जिन को थोड़ा सा स्कार्स है, जैसे लाइक आई हैव एक्ने स्कार्स, आई हैव पोर्स, बीइंग अ मैन आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्सचर, तो उनके लिए पैक का पोर प्राइमर यूज़ कर सकता है. सो अभी मैं ले रहा हूँ पैक का पोर प्राइमर एंड मैं इसको प्लेस करूँगा मेरा पोर्स के ऊपर. तो प्राइमर मैंने अप्लाई कर चुका हूँ. तो प्राइमर थोड़ा सा सोक करने दो स्किन में. तो थोड़ा सा सेट होने के टाइम में हम अंडर आई कलेक्टर कर सकते हैं. अंडर आई कलर करेक्शन में भी काफ़ी सारी पॉइंट्स है गाइस. एक चीज़ जो नेट में काफ़ी चलता है कि ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लो एंड सेट करो. इट डजंट हैपन्स इन दैट वे. सबको वैसा नहीं होता है. आई हैव अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑन दैट वन, सो आई हैव सम मिक्स थॉट्स ऑन दैट. तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ या मैं क्या यूज़ करता हूँ कि मैंने मैक का करेक्टर यूज़ करता हूँ, विच इज़ NW35. ये थोड़ा सा वार्मर टोन है, थोड़ा सा एक शेड थोड़ा सा वार्मर टोन है मेरे स्किन से अलावा. मेरे स्किन से ज़्यादा टोन है, इसकी वजह से ये डार्क सर्कल्स कम हाइड हो सकता है. सो हर एक स्किन के लिए, हर एक अंडर आई के लिए अलग अलग होता है कलर करेक्शन करना. हर एक कंसर्न के लिए हर एक अलग अलग होता है. तो अभी इस वीडियो में मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैक का कलर करेक्टर. इट्स नॉट अ कलर, इट्स बेसिकली से कंसीलर ही कलर करेक्टर यूज़ करते हैं हम. तो आई एम यूजिंग NW35. मैं एक प्रोआर्टे का ब्रश ले रहा हूँ, प्रोआर्टे PF08. एक कंसीलर बफिंग ब्रश है. तो मैं आपको दिखाता हूँ एक शेड वार्मर टोन लेने से क्या होगा, क्या बेनिफिट्स है मेरे स्किन के हिसाब से. हमेशा ऑरेंज कलर करेक्टर ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है.
डोंट वरी गाइस, मैंने सारी शेड्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफ़ी सारी ब्रांड्स जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ, सारी शेड नेम्स सब कुछ, इवन ब्रशेस के साथ साथ मैं आपको नीचे लिख दूंगा। डोंट वरी गाइस। सो यू कैन सी द डिफरेंस। कैन यू सी द डिफरेंस? तो एक शेड वार्मर टोन से भी कलर करेक्शन हो सकता है, नॉट ओनली ऑरेंज कलर करेक्टर। हल्का सा इधर भी अप्लाई करता हूँ जिधर मुझे ब्लेमिशेस है। अब देखा जाएगा तो मेरा कलर करेक्शन हो गया एंड मेरा ब्लेमिश, मेरा अंडर आई भी कलर करेक्ट हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दो तरीका है, हल्का सा पाउडर से सेट कर सकते हैं या नहीं करना है तो सीधा फाउंडेशन भी अप्लाई कर। आई एम यूजिंग एलेगल का फाउंडेशन आज। तो फाउंडेशन इफ़ यू सी मार्केट में इतना सारे फाउंडेशन आ चुका है, सो इट इज़ अप टू पर्सन। सो आप स्टोर में जाइए, फाइंड आउट करिए एंड सेलेक्ट कर सकता है फाउंडेशन आपका एग्जैक्ट मैचिंग फाउंडेशन। So it's Illegal Pro Coverage HD Long Wear Illuminating Foundation. So very lengthy name. Let me show the packaging guys. So this is the foundation Illegal का Pro HD Long Illuminating Foundation. तो ये शेड है फेयर, ये शेड है सॉफ्ट हनी। सो एक शेड लाइटर है, एक शेड डार्कर है, तो इन दोनों को मिक्स करके यूज़ करता हूँ मैं आज। ब्लेंड करने के लिए दो स्पंजेस रिकमेंड करता हूँ एंड विच आर माई मोस्ट फेवरेट स्पंजेस। ये भी ऑफकोर्स इंडिया में मिलता है। सो दिस इज़ बेयर ब्यूटी टूल्स का स्पंज है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पंज फॉर मी। दिस इज़ वन एंड नेक्स्ट वन पैक का स्पंज। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्क्विशी सॉफ्टी स्पंज। तो ये प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं। मैंने एक IGTV अपलोड कर चुका हूँ वीडियो जिनमें आपको डिटेल रिव्यू दे चुका हूँ। फाउंडेशन ले रहा हूँ एंड मैं स्पंज से अप्लाई कर रहा हूँ। गो ऑन टैपिंग मोशन गाइस, सो डोंट गो इन अ स्वीपिंग मोशन। फाउंडेशन हम अप्लाई करता है ब्यूटी स्पंज से, सो हम हमेशा टैपिंग मोशन से जाना चाहिए। डोंट गो विद द स्वीपिंग मोशन। हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नेवर एवर डू दिस काइंड ऑफ स्वाइपिंग व्हेन इट इज कम्स टू द अप्लाइंग ऑफ फाउंडेशन। बेस्ट टूल फॉर मी इज द स्पंज। मेकअप स्पंज से होता है एंड दिस Bare Beauty sponge is my most favorite sponge. This is the foundation which I have applied on my skin. So ये foundation इस तरह मैं अप्लाई करता हूँ with the sponge. So हमेशा टैपिंग मोशंस में जाता हूँ। फाउंडेशन के बाद हम जाएंगे कॉन्टोरिंग के पास। जो पहले कॉन्टोरिंग करने पहले हाइलाइटर करना है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड मैं जनरली हमेशा पहला कॉन्टोर करता हूँ, उसके बाद उसके बाद कंसीलर करता हूँ, हाइलाइटिंग करता हूँ। मैं कभी कभी उल्टा भी करता हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन अगेन टाइम टू टाइम। तो मेरे साथ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है। सो अभी कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी एंड हुडा ब्यूटी हमको इंडिया में मिलता है अभी हमारा नायका में भी, विच इज़ अंडर शेड मीडियम। सो हुडा ब्यूटी का टोंटोर है ये। तो अगर आपको ये लग रहा है ये महंगा है तो आप ले सकता है मेकअप रेवोल्यूशन का कलर करेक्शन C16 में। C16 इज वन ऑफ द गुड शेड, तो वो भी काफ़ी अच्छा है एंड दिस वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टोंटोर। कॉर्नर्स है, तो दिस कॉर्नर्स मुझे हाइड करना है एंड ये थोड़ा सा हाइड करना है, इसको थोड़ा सा कॉन्टोर करना है ताकि मैं फेस को भी थोड़ा सा छोटा कर सकूँ, बिकॉज माई फेस इज़ बिट वाइडर फेस, तो मुझे हल्का सा कम भी करना है। तो जिधर जिधर मुझे करना है उधर मुझे कॉन्टोरिंग अप्लाई करना है। इट डिपेंड्स ऑन अगेन हर एक फेस शेप के हिसाब से कॉन्टोरिंग करना पड़ता है। माई टेक्निक एंड जनरली सजेस्ट एंड प्रीफर टू यूज़ दिस, रिकमेंड दिस। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसा कि एक कॉन्टोरिंग देखो थोड़ा सा डार्क है, तो अभी इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आई यूज़ द सेम स्पंज विच आई यूज़ फॉर द फाउंडेशन। तो मैंने फाउंडेशन जिस स्पंज से अप्लाई कर चुका हूँ उसी स्पंज से मैं कॉन्टोरिंग भी ब्लेंड कर देता हूँ। See how amazingly it is blended out. So contouring करना चाहिए, क्रीम कॉन्टोरिंग इफ़ यू वांट टू गो फॉर लॉन्ग स्टे। अगर आपको कॉन्टोरिंग ज़्यादा टाइम तक रहना है तो यू हैव टू अप्लाई द क्रीम कॉन्टोरिंग एज वेल। आफ्टर द वी हैव टू अप्लाई द पाउडर कॉन्टोरिंग। मैं कंसीलर में दो रिकमेंड कर रहा हूँ, दो यूज़ कर रहा हूँ आज का है जो इंडिया में मिलता है। एक पहला चीज़ है बेनिफिट का बोइंग कंसीलर। बेनिफिट का बोइंग कंसीलर हमको इंडिया में मिलता है। इसके अलावा अगर आपको कम चीज़ में मिलना है तो आपको मेबलिन फिट मी का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कंसीलर, काफ़ी अच्छा कंसीलर है, लाइट वेट है, अच्छा से यूज़ होता है। तो मैं हल्का सा इधर अप्लाई कर रहा हूँ एंड हल्का सा पीछे अप्लाई करूँ ताकि मेरा फेस लिफ्टिंग इफेक्ट आ जाए। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटिंग सेंटर पॉइंट में फेस का सेंटर में रहेगा ताकि मेरा फेस इल्यूजन रहेगा कि मेरा फेस
छोटा है। तो ये लिफ्ट क्यों करा कि मेरा आई लिफ्ट होगा इस टेक्निक से, ये जो पीछे वाला कंसीलर से। सो हियर कम्स द कंसीलर कलर करेक्शन के साथ एंड हमारा कॉन्टोरिंग के साथ। कैन यू सी द डिफरेंस एंड द गुड बेस। सो इस तरफ भी मैं ब्लेंड कर दूंगा। सो मेरा कंसीलर भी मैंने ब्लेंड कर चुका हूँ। तो कंसीलर भी आपको सेंटर पे है मेरे कंसीलर, कॉन्टोरिंग मेरा साइड्स में है, जिधर जिधर टेम्पल्स में है इधर हमारा कंटोरिंग है एंड कंसीलर है। कभी कभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। इफ़ लेडीज़ को है तो लेडीज़ को तो आपको ये पार्ट भी करना चाहिए, तो ये छिन पार्ट भी आपको कंसीलर से आप हाईलाइट कर सकता है। तो मुझे सिर्फ इतना ही फेस है, मेरा स्किन जो मैं जिधर फाउंडेशन अप्लाई करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, तो मैं इधर अप्लाई कर चुका हूँ। सो दिस कंसीलर एंड कॉन्टोरिंग इज़ ब्लेंडेड वेल टुगेदर। तो अगर आपको कॉन्टोरिंग कम लग रहा है तो अभी भी still now you can apply the contouring and you can blend it. So once the contouring is completely blended and foundation is concealer is everything is blended correctly and smoothly, सब ब्लेंड होने के बाद ही हम फाउंडेशन को पाउडर से सेट करना चाहिए। मैं एक ब्यूटी का पाउडर ले रहा हूँ, अमेजिंग सेटिंग पाउडर गाइस। शेड बनाना ले रहा हूँ एंड यूज़ कर रहा हूँ। मैं छोटा सा स्पंज से यूज़ कर रहा हूँ एंड पहला अंडर आई सेट कर रहा हूँ। जितना भी पाउडर है उसी से मेरा पूरा लेफ्ट साइड भी अप्लाई कर रहा हूँ एंड सेट कर रहा हूँ मेरा फेस एंड आईज। So can you see the matte finish and the dewy finish? So this is the liquid foundation which is not yet set. This is the foundation which is set. So you can see मेरा foundation भी touch नहीं हो रहा है। So same way I am setting over my forehead as well. Guys मैंने मेरा पाउडर भी सेट कर मेरा पाउडर के साथ मेरा फाउंडेशन भी सेट कर चुका हूँ। So this is the set foundation एंड कंसीलर एंड कॉन्टोरिंग। तो मैंने क्रीम बेस वाला किया, तो अभी हमको पाउडर सेम वे में हमको पाउडर भी करना है। तो दिस इज़ द वे हाउ आई डू माई फाउंडेशन एंड माई बेस। So you can see the base, seamless base with some dewy and matte finish. So this is how I achieve my foundation look, foundation using my foundations. So there goes to end of this video. So हम ये वीडियो शायद आपको यूज़ हुआ है एंड यूज़ होगा। तो if please don't forget to subscribe to my channel and give a thumbs up and leave your comments in the comment section below. And जिनको प्रॉब्लम है फाउंडेशन अप्लाई करने में एंड स्किन को अच्छे से लेके आने में, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए एंड काफ़ी यूज़ होगा। एंड जितना यूज़ होगा मुझे वापस आके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। And for today, and thank you so much guys who came back to my channel and supporting me and giving me your likes and comments and your love and supports. Don't forget to follow me in my Instagram. So I'm just giving all the handles in the description box below. So don't forget to catch the updates and my small tidbits and videos and suggestions and everything in my Instagram as well. तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिधर हमारा बेनिफिट मस्कारा का रिव्यू होगा एंड कैसा अप्लाई करना है, कैसा यूज़ होगा, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन बाय गाइस, सी यू, डोंट फॉरगेट, बी हैप्पी, बी सेफ।